A very good morning to all of you. This is Abhilash Shanhata, your political science teacher, and today we are going to start our new chapter of your book Indian Constitution at Work, and your chapter name is Local Government. This is chapter number 8 of your book. Okay, start with this chapter, local government. First of all, होता क्या है? What is this local government? As you all know, India has a federal structure. ठीक है? There are different levels of government. You have already learned about the federalism and federal structure in your earlier classes. There are India has a three-tier system and three-tier level of governments and divided on different levels, and these levels are central level, state level, and the local levels. Okay, so today we are going to discuss about the local government, our third tier, third level of the government. Okay, local government. So what is this local government? Local government is the public administration of towns, cities, counties, districts, and villages. Okay, the public administration of towns हो गए, cities हो गए, districts and villages at local level is known as local government. Okay, unlike state government and the central government, they take care of all other areas of governance. Okay, at the state level and the national level, local government administer your own area. Okay, only the prescribed area, only the prescribed village, or only the prescribed district or counties or cities or towns. Okay, locally जब local government जो है किस पे एडमिनिस्टर करती है, किस पे वर्क करती है, अपने खुद के टाउन पे, सिटीज पे, अपने खुद का एक प्रिस्क्राइब जो एरिया गिवन है उस पे, विलेज पे, उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है. Now, as you all know, in a democracy, ठीक है, what is the meaning of democracy? To the and सबसे lamest and सबसे easiest आपकी definition है to the government, by the government, and for sorry, to the people, by the people, and for the people. Okay, and in a democracy, in a democratic government, it is not sufficient to have an elected government at the center and at the state level. It is not sufficient, because what is the meaning of democracy? क्या है डेमोक्रेसी? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें. सो सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे खाली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी में. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल जो है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाती है. सो लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट तक हमारा भी पहुंचना क्या है, इजी है, और हमारा भी पहुंचना क्या है, हम कन्वीनियंटली पहुंच सकते हैं, और लोकल गवर्नमेंट भी हमारे तक कन्वीनियंटली पहुंच सकती है, अनलाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. So it is also necessary that even at the local level there should be an elected government to look after the local affairs, whatever the local affairs. तो यहाँ पे लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली हमने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया और हो गया. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती है. वही हम लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट भी अगर हम इलेक्ट करते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल अफेयर्स, जितने भी लोकल वर्क है, लोकल एमिनिटीज है, उनके लिए वर्क करेगी. ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम तक पहुंचेगी, क्योंकि वो वही की है. ठीक है, वो लोकली एक छोटा सा एरिया है और वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो उसी एरिया को देखते हुए लोगों के इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. तो दैट्स व्हाई एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो in this chapter what we are basically going to study about, we are going to study about the importance of local government body.
what is the importance of local government bodies, why it is necessary to have the local government bodies. Okay, after that we will able to get to know about this, why it is important, why it is important to have local government body. After that, what are the provisions made by the 73rd and 74th amendments? ठीक है, in your earlier classes, in your class 10th also, you have learn about decentralization. Okay, in the chapter power share, in the chapter federalism, you have learn about the decentralization. There is the 73rd and 74th amendment. There was a 73rd and 74th amendment in the year 1992, and in that year क्या हुआ था, आपका पहले जो पावर्स थी, ठीक है, जो मेन जो पावर्स थी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ही थी, और इलेक्टेड लोकल लेवल पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते थे। तो आफ्टर इन 1992 डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, स्टेट और सेंटर में अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो दैट इज 73rd and 74th amendment, and which year decentralization came up. ओके, सो हम ये भी पढ़ेंगे और पता चलेगा कि ऐसे क्या प्रोविजंस थे जो 73rd और 74th अमेंडमेंट में हुए थे इन द ईयर 1992. After that, what are the functions and responsibilities of the local government bodies? क्या functions होती है, क्या उनके पास क्या responsibilities होती है, किस apex तक, किस लिमिट तक वो वर्क कर सकती है, और उनको कैसे क्या काम करने चाहिए। तो क्या functions है, responsibilities है लोकल गवर्नमेंट के, उनको भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। हमें पता चलेगा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और क्या इनके फंक्शंस है, वो क्या फंक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसपे वो वर्क करते हैं। Okay, so today basically we are going to discuss our very first topic. ठीक है, वेरी फर्स्ट आपका जो लोकल गवर्नमेंट का पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाई लोकल गवर्नमेंट्स। ओके, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, व्हाई। Okay, so before discussing this local governments, why local governments, we will read two stories. Story of Sarpanch, जामोनिया तलब ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर में एक जामोनिया तलब ग्राम पंचायत के सरपंच की हम स्टोरी सुनेंगे। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन सरपंच। ओके, वुमेन प्रेसिडेंट की बात है, गीता राठौड़। ठीक है, गीता राठौड़ बिलोंग्स टू जामोनिया तलब ग्राम पंचायत, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। She was elected Sarpanch in 1995 from a reserved seat, but in 2000 the village people rewarded her for her admirable work by electing her again, this time from a non-reserved seat. From a housewife, Geeta has grown into a leader, displaying political farsightedness. She has harnessed the collective energy of her panchayat to renovate water tanks, build a school building, construct village roads, fight against domestic violence and atrocities against women, create environmental awareness, and encourage deforestation and water management in her village. Okay, so this is a brief story of Geeta Rathore, who belongs to Jamonia Talab Gram Panchayat in 1995। कैसे रिजर्व्ड सीट से उनको क्या है इलेक्ट किया गया था सरपंच। ठीक है, रिजर्वेशंस होती है, तो जस्ट लाइक दैट कि वुमेन की रिजर्वेशन है, तो गीता राठौड़ जो है रिजर्व सीट से क्या है इलेक्ट हो गई थी। बट इन द ईयर आप नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन में जब 2000 में उनको कब लोगों ने खुद ने इलेक्ट किया। क्यों इलेक्ट किया? ऑब्वियसली अगर उसने कुछ अच्छे काम किए हैं इसी वजह से आपने इलेक्ट किया है। ठीक है, तो लोगों ने फिर से इलेक्ट किया इस टाइम पे नॉन रिजर्व्ड सीट से। इस टाइम पे रिजर्वेशन नहीं थी, बट फिर भी लोगों ने उन्हें क्या किया है, उनको इलेक्ट किया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बहुत अच्छा उन्होंने लीडरशिप को निभाया, उन्होंने पॉलिटिकली जो वर्क होने चाहिए, ठीक है, उन्होंने फार साइटेडनेस दिखाई कि उन्होंने पावर को प्रोड्यूस किया, ठीक है, जिससे कि जो पंचायत है वहाँ पे पानी टंकियां जो है, वाटर टैंक्स है, वो जो रेनोवेट हो सके, स्कूल बिल्डिंग्स बिल्ड हो सके, विलेज विलेज को कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स, विलेज में रोड्स को कंस्ट्रक्ट करवाया उन्होंने, डोमेस्टिक वायलेंस के और जो भी एट्रोसिटीज, ठीक है, वुमेन शो करती थी, ठीक है, जितनी भी बुराइयां थी जो वुमेन देखती थी उसके अगेंस्ट उसने फाइट की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर किया उसने, एफॉरेस्टेशन के लिए अवेयर किया, वाटर मैनेजमेंट के लिए इंकरेज किया। तो ये सारी चीजों की वजह से उसको फिर से क्या है अनरिजर्व सीट से उसको 2000 इन द ईयर 2000 फिर से इलेक्ट किया, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ सरपंच गीता राठौर. Now the other story we will read about, this is also a story of a woman, ठीक है, another story of another woman achiever. वो कौन थी? स्टोरी ऑफ सरपंच ग्राम पंचायत ऑफ वेनगायावसल विलेज, तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, the Tamil Nadu government allotted 2 hectares of land to 71 government employees. This piece of land fell within the vicinity of this Gram Panchayat. On the instructions of higher authorities, the district collector of Kanchipuram directed the president of the Gram Panchayat to pass a resolution endorsing the allotment of the said land for the purpose already decided. The president and the Gram Panchayat refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. The Gram Panchayat filed a writ petition in the Madras High Court against the collector's action. The single judge bench of the High Court upheld the collector's order and ruled that there was no need to take the Panchayat's consent. The Panchayat appealed to the division bench against the single judge order. In its order, the division bench reversed the order of the single judge. The judge held that the government order amounted to not only infringement of the powers of the panchayat, but a gross violation of the constitutional status of the panchayat. Now look at this story. This is a different story. Okay? This is a different story of पंचायत। 1997 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड को 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या कर दी थी, अलॉट कर दी थी। और ये जो लैंड्स अलॉट की थी वो ग्राम पंचायत है, जो वेनगायवसल जो विलेज है इसी के आसपास का एरिया था। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कांचीपुरम के, उन्होंने ग्राम पंचायत थी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थी गांव की, उनको बोला कि आप इनके साथ क्या करें, रेजोल्यूशन इंडोर्सिंग द अलॉटमेंट, आप जो भी है अग्री करें, ऑफिशियली आप सपोर्ट करें जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है उसको लेकर, और ये जो 71 ऑफिशियल्स को हमने जो लैंड दी है उसको पास आउट करने में, ठीक है, और जो भी ऑर्डर मिला है उसमें हेल्प। So the president and the ग्राम पंचायत refused, जो प्रेसिडेंट थी और जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने इस ऑर्डर के, कलेक्टर के इस ऑर्डर को रिफ्यूज किया, और उन्होंने कि हम ये लैंड एक्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंड गांव वालों की है और हम इसको नहीं दे सकते। तो ग्राम पंचायत ने क्या किया, एक रिट पिटीशन फाइल की। क्यों रिट पिटीशन फाइल की? क्योंकि उनका एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, काइंड ऑफ क्या हो रहा था, वो वायलेट हो रहा था। तो उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में कलेक्टर के एक्शन के अगेंस्ट में। तो ये जो आपका रिट पिटीशन थी वो किसके पास गई, सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के पास गई थी, और उन्होंने क्या कहा था कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है उसी को माना जाएगा, यहाँ पे पंचायत की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने ये जजमेंट दे दी। बट
in its order, the division bench. Now, what is this division bench? Division bench is it is a term in the judiciary, which means a case. This a case is heard and judged by at least two judges. ठीक है, जो भी केस है, ठीक है, whatever the case is, जो भी केस है वो कम से कम दो जजेस के सामने क्या होगा, उस केस की सुनवाई होगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन बेंच. ओके, a division bench is a term in judiciary in which a case is heard and judged by at least two judges. ठीक है, तो डिवीजन बेंच ने क्या एक इसका रिवर्स, मतलब इसके जो भी सिंगल बेंच सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में रिवर्स में क्या कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया. जजेस ने द जजेस हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द पंचायत बट अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायत. उन्होंने कहा कि ये जो आपने ऑर्डर दिया है वो गलत है, ये पंचायत की जो भी पावर्स है उसको क्या कर रही है, वायलेट कर रही है और इन्फ्रिंज भी कर रही है. ठीक है, सो और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है पंचायत का उसको वायलेट कर रही है और नियमों को तोड़ रही है, तो आप ये जो लैंड है नहीं दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ तमिलनाडु ग्राम पंचायत. ठीक है, वेंगायवसल की विलेज की ग्राम पंचायत की स्टोरी है. both these incidents are not isolated incidents. दोनों ही आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है. दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों में ही बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, स्पेशली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन 1993. ठीक है, दोनों ही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया था. ठीक है, 1992-93 में आपका डिसेंट्रलाइजेशन आया था, लोकल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई थी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उसी टाइम पे. और 1993 के बाद ऐसे दो केसेस जिससे कि सोसाइटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिनको सुनाई दिया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, अग्री कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के. ये दोनों ही जो आपकी स्टोरीज है, दोनों ही क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है लोकल गवर्नमेंट के साथ अग्री कर रहे थे और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने चला कि एक लोकल गवर्नमेंट ने क्या है, लोगों की नीड को समझा. ठीक है, लोगों की क्या नीड है, लोग जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो उनके बारे में सोच के क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टेप ले रहे हैं. वो ये अगर स्टेट लेवल पे होता तो स्टेट लेवल इतना इतना नहीं सोचता कि गीता, जैसे जो गीता राठौड़ थी, उन्होंने देखा कि मेरे मेरे गांव में क्या जरूरत है, कि पानी टंकी की जरूरत है, स्कूल बिल्ड करवाने की जरूरत है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाने की जरूरत है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करवाने की जरूरत है, एफॉरेस्टेशन होना चाहिए. बट कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे इतने अच्छी तरीके से काम नहीं हो पाता जितना कि गीता राठौड़ ने लोकल लेवल पे टैकल किया, क्योंकि वो लोकली लोगों को जानती है, लोगों के नीड्स को पहचानती है. तो जस्ट लाइक दैट, ये जो लोकल लेवल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन आए थे, इन दोनों स्टोरीज से हमें पता चलता है आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1993, 1992 एंड 1993. नाउ what is the meaning of the term local government? अब समझते हैं कि ये local government होता क्या है. It is government at the village and district level. ठीक है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं. गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. ठीक है, आम आदमी के बहुत नजदीक होती है. आम आदमी की जो भी कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन पीपल के नीड्स को जानने की कोशिश करती है, उनके उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनती है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको देख सकती है लोकल गवर्नमेंट. तो ये एज कम्पेयर टू स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. अब देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर तो है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है. बट अगर हमारी कोई छोटी प्रॉब्लम है हमारे लेवल की, हम प्राइम मिनिस्टर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते ना. प्राइम मिनिस्टर तो कितने सारे पूरे 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज को लुक आफ्टर कर रहा है. बट वो लोकल गवर्नमेंट है
तो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट को हमारे लोकल एरिया, अब सपोज एग्जांपल लेते हैं बीकानेर का ही खाली, तो अब बीकानेर में डिस्ट्रिक्ट के वाइज देखते हैं तो खाली बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को ही वो देखेगा ना, संभालेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को आ रहा है। फिर अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारे बहुत से गांव है कि अच्छा ठीक है, जो छोटे छोटे गांव आते हैं इसमें कि अब वहां पे लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, वो उसको लुक आफ्टर करती है और उसको उतने अच्छे तरीके से क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी, लोग वहां तक जा भी सकेंगे। लोगों को पता है कि ये लोकल गवर्नमेंट है, तो हम अपनी अपनी प्रॉब्लम इनको बताते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे पहुंचाने, अगर हायर अथॉरिटीज को पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो वहां पे भी पहुंचाएंगे। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है कॉमन पीपल के बहुत क्लोज होती है। Government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens. Already told you कि डे टू डे जो लाइफ में हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको क्या करती है, लुक आफ्टर करती है। Local government believes that local knowledge and local interest are essential ingredients for democratic decision making. ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट जो अगर लोकल पर्सन है जो उस एरिया में ही रहता है, उसी को अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसे लोकल नॉलेज है, उसे पता है कि यहाँ पे लोगों को क्या जरूरत है, यहाँ पे किस टाइप की डेवलपमेंट की जरूरत है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हमें इसे सही करने के लिए क्या डिसीजन, डेमोक्रेटिकली क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। तो लोकल इंटरेस्ट जो है, सॉरी क्लास, जो लोकल इंटरेस्ट जो है, लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे लोगों के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। So these are some of the features of the local government and this is local government. Okay, अब इससे क्या एडवांटेज होगा, सुनना, एडवांटेज क्या है, इट इज सो क्लोज टू द पीपल, ठीक है, it is so near to the people, local government is so near to the people, so it is convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly and with minimum cost। अगर अब देखिए सपोज कोई लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, अगर कोई लोकली आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे तो ऐसा तो नहीं है स्टेट गवर्नमेंट आपके गाँव में ही बैठा है, नहीं ना। तो आपको क्या है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो भी कैपिटल सिटी है वहां पे है तो वहां जाओगे, फिर वहां जाके अब आपको उनके पास अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, तो इसमें बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और यहाँ पे क्या है, मनी कंज्यूमिंग भी है कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। तो लोकल गवर्नमेंट के होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट इतने क्लोज है लोगों के कि जिससे कि ये लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हो चुका है, लोग जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए, उनके प्रॉब्लम को देखा जाए और जल्दी से जल्दी क्या है, मिनिमम कॉस्ट में डिसीजन लिया जाए। Okay, so local governments can be very effective in protecting the local interest of the people. So this is one of the important feature of the local government. It can be very effective in protecting the local interest of the people. तो क्वेश्चन भी पुट हो जाता है कि how local government work effectively in protecting the local interest of the people. So by giving this example, you can it is so close to the people and it is easier for the people to approach the local government for solving their problems at as soon as possible with the minimum cost। सो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के जो भी लोगों के इंटरेस्ट है, लोगों के अफेयर्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है और बहुत इफेक्टिवली करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, डेमोक्रेसी is about meaningful participation and accountability. Now, second feature, important feature है, democracy is about meaningful participation and accountability. इससे पहले बेटा जब हम ये वाला जब पढ़ रहे थे, लोकल गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो हमने गीता राठौड़ के और जो तमिलनाडु की
जो पंचायत थी वेंगाई वसल विलेज, हमने उसमें देखा कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लोगों की जो जमीनें हैं, लैंड है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जा रही थी। तो अब वहाँ की जो प्रेसिडेंट है और वहाँ की जो पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया। किसने हेल्प किया कि वो हायर अथॉरिटीज के पास गए और जज के पास गए, कोर्ट के पास गए, और उन्होंने बोला कि इट इज ये तो वायलेशन हो रहा है ना, तो आप लुक आफ्टर कीजिए, आप ऐसे कैसे लैंड दे सकते हैं। और गीता राठौड़ ने भी क्या किया कि हमारे गांव में पानी टंकी की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, तो उसके लिए उसने सूटेबल स्टेप्स लिए। तो लोगों ने, उसको कैसे पता चला, लोग उसके पास आए, लोगों की प्रॉब्लम्स पता चली, तभी उसको पता चला ना गीता राठौड़ को। और वेंगाय वसल विलेज के भी जो लोग थे, ठीक है, उनकी लैंड दे दी जा रही थी, तो वो सरपंच के पास आए, ग्राम पंचायत के पास आए, और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर लैंड चली जाएगी तो हम एग्रीकल्चर हम कैसे करेंगे, ठीक है, वहां पे अगर घर बन जाएंगे तो ये तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाएंगे, या फिर जो भी उनके वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उन्होंने बताया। तो लोकल गवर्नमेंट के दोनों ही हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे उनकी हेल्प की और कैसे उनके इंटरेस्ट को, उनके अफेयर्स को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। Now next is democracy is about meaningful participation and accountability. Okay, how strong and vibrant local governments ensure both active participation and purposeful accountability. जितनी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट होगी लोकल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो भी उसकी अथॉरिटी है, जो भी उसका एरिया है वर्क करने का, वो जो भी पर्पस है, ठीक है, उसको फुलफिल कर सके। तो लोगों का, डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और ज्यादा से ज्यादा पावर हम क्या करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और अपने जो वर्क ऑफ एरिया है हम उसको कंप्लीट करें अच्छे से। तो जितना स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, उतने ही इंश्योर होते, उतना ही इंश्योरली हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और हमारा जो एरिया है वर्किंग वर्किंग का, वो भी पर्पस कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है। Next, it is at the level of local government that common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their needs, and above all their development. और इस लोकल लेवल पे ही क्या है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, वो उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनके नीड्स कैसे हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, उसको लेके कंसर्न होते हैं और वो बता सकते हैं। ओके, so it is necessary that in democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representatives, because they are very much familiar to the common people, and they can, as compared to state government and the central government, they are more concerned with what local government does or has failed to. जो लोकल कॉमन पीपल है, वो ज्यादा किसको लेके कंसर्न होंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है। हम किसको, हम अगर चुनाव, अगर आपने इलेक्शन देखा है तो आप अपनी फैमिली में भी देखते हो, नॉर्मली यही बोलते हैं ना कि इसने, इस पर्सन ने काम किया है तो हम इसी को वोट देंगे, ऐसा होता है ना। तो जस्ट लाइक दैट, जो कॉमन पीपल है वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे बाद में देखती है, पहले वो देखती है कि जो लोकल लेवल पे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना काम कर पा रहा है, वो हमारी लाइफ में कितने चेंजेस ला रहा है, हमारी कितनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो thus strengthening local government is like strengthening democratic process. अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ मतलब कि पावरफुल बना दिया, ठीक है, उसने अगर अपना वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, इसका मतलब है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। हम हमारा जो हम अपनी स्ट्रेंथ उनको भी देते जा रहे हैं, ठीक है। So strengthening local government is like strengthening democratic process. Okay, so class, this is all about today. Thank you for joining the class of the